Yes, students, we are on ozone layer. Ozone layer is basically a type of oxygen and it is an envelope of oxygen gas which is created by Allah Almighty around our atmosphere, around our earth to protect it from the ultraviolet rays coming from the sun, and it does not let the ultraviolet rays to reach on the earth. Ultraviolet rays cause skin cancer and eye diseases in the human beings, and if the quantity of ozone gas decreases, then what happens? Ultraviolet rays will reach the earth, and which is very harmful for life on earth, not only for human beings but also it is dangerous for plants and animals too. Now you can see this picture, this diagram or picture. In this picture we can see earth in the center, and there is another circle around the earth which is just like an envelope, a ball in an envelope, and this envelope is basically ozone layer, and the ultraviolet rays of sun are trying to reach the earth, but this ozone layer reflect it and save the earth from its harms. But we are destroying this ozone layer through different activities, which and this destruction of ozone layer is known as depletion. Causes of ozone layer depletion. Ozone layer depletion is the thinning of ozone layer. Thinning मतलब पतला कर रहे हैं हम उसको ओजोन लेयर को, तो पतला कर करके हमने क्या किया है, कई जगहों से फिर ओजोन लेयर को हमने तबाह भी कर दिया है, ठीक है। और उस तबाही की वजह से, जैसे कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं सन से, इनमें से कुछ जो हैं वो अर्थ तक पहुंच रही हैं, तो वो जहाँ से अर्थ पे पहुंच रही हैं वहाँ से क्या हुई है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, मतलब टूट गई है, और वहाँ से ये रेज अर्थ तक आ रही हैं। और दैट्स वाई वी कैन सी अराउंड अस कि स्किन डिजीज़ में और आई डिजीज़ में इजाफा होता चला जा रहा है। दिस इज़ द मेन रीज़न, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और कॉजेज़ क्या हैं जी इसकी? causes है इसकी, this happens when the chlorine and bromine atoms in the atmosphere, these are the names of two chemicals, chlorine and bromine, and these are the atoms in the atmosphere come in contact with the ozone and destroy the ozone molecule। और ये मैंने पहले आपको बताया कि ओजोन मॉलिक्यूल बेसिकली ऑक्सीजन है, O3, तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओजोन लेयर इज़ रैपिडली डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है तो उसमें क्या हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, कि ह्यूमन ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। एंड हाउ दे कैन क्रिएट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? Simply, very simple way of creating the chlorofluorocarbon, which is every human being has its effort to create this. We are using refrigerators, air conditioners, our air coolers, almost every electric appliances is creating chlorofluorocarbons in the atmosphere. That's why we should try to use these appliances as low as we can, ताकि हम इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कम से कम बायस बन सकें और अपनी अर्थ को और ख़ुद को अल्ट्रावायलेट रेज से बचा सकें। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ मेन कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की मेन कॉजेज़ क्या हैं? मेन कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, as we have already discussed, that the main cause of the climate change is basically the amount of carbon dioxide in the atmosphere, and carbon dioxide is induced by the human activities, मतलब हम लोग खुद कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि जब से ये यूनिवर्स वजूद में आई है, एग्जिस्ट हुई है, तब से कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एंड द अदर रीज़न इज़ ग्लोबल वार्मिंग that is created by the greenhouse gases and other factors which we have discussed earlier। इसके अलावा क्या है कि some natural processes such as sun's energy and volcanic eruption also affects Earth's climate। और इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट आर एनालाइजिंग नंबर ऑफ इनडायरेक्ट मेजर्स टू चेंज, these are the indirect measures to calculate the climate change such as ice cores। मतलब ice cores क्या है कि
यस, तो आइस कोर्स है फर्स्ट इसका मेथड, और इसमें जो है वो आइस की ग्लेशियर से एक सिलेंड्रिकल पीस लेके उससे पास्ट के क्लाइमेट्स का अंदाज़ा लगाया जाता है। सेकंड मेथड है ट्री रिंग्स। अब जो दरख्त का जो ट्रंक होता है, ट्रीज़ का ट्रंक, उसको काट के उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमें रिंग्स नज़र आते हैं। दीज रिंग्स बेसिकली शो द एज ऑफ द ट्री, बट it also indicates the weather conditions, climate changes in the past, कि पास में क्या टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर क्या था, सब कुछ उससे इंडिकेट होता है। इसी तरह से ग्लेशियर लेंथ्स, ग्लेशियर्स की लेंथ कौन सी है उसको मेजर किया जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जब जो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उनकी लेंथ कौन सी है वो डिक्रीज़ हो रही है। पोलन रिमेन्स, अब ये जो पोलन रिमेन्स हैं ये जो एलर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं इतनी इंटेंस किस्म की, और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहे हैं, जो प्लांट्स में क्या पोलन्स क्रिएट होते हैं। पोलन्स होते क्या हैं? पोलन्स होते हैं वो येलो कलर के पार्टिकल्स होते हैं जो आपने मौसम बहार में अपने इर्द गिर्द उड़ते हुए भी हवा में हमें नज़र आते हैं। वो येलो कलर के पार्टिकल्स वो बेसिकली पोलन्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है इसकी एलर्जी का बायस बनते हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं। और ये क्या हैं, ये भी हमें इंडिकेट करते हैं, साइंटिस्ट को इंडिकेट करते हैं कि पास्ट का क्लाइमेट कैसा था। फिर आगे जी ओशन सेडिमेंट्स, ओशन की जो सेडिमेंट्स मतलब ओशन के जो पार्टिकल्स होते हैं जो समंदरों के साथ रेत होती है वो क्या शो करते हैं, वो भी हमें शो करते हैं कि ओशन का पहला क्लाइमेट क्या था पास्ट में, और मतलब कैसे कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। एंड बाय स्टडिंग द चेंजेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड दिस सन, एंड दिस रिकॉर्ड शोज द क्लाइमेट वेरीज नेचुरली ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टाइम स्केल्स। ठीक है जी। सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का बायस बन रही है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इससे मोर एंड मोर हीट जो सी है वो ट्रैप हो रही है, ग्रीन हाउसेस गैसेस ट्रैप कर रही हैं। ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं मैंने पहले आपको बताया है कि ये हमेशा से मौजूद हैं, बट दीज आर नॉट सो वार्म एज दे आर नाउ। पहले ये इतनी गर्म नहीं थी और ना ही मतलब इसका अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था। अब इनकी ज़्यादा एनहेंस हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, क्योंकि इंडस्ट्री जब रेवोल्यूट हो रही है तो उससे क्या हो रहा है कि हम हर तरफ देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल जलाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल की शक्ल में, आपके पेट्रोल की शक्ल में, आपके डीजल की शक्ल में, आपके कोल की शक्ल में, मतलब क्या हो रहा है कि हर तरीके से फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जा रहा है। और जब वो बर्निंग हो रही है तो उससे क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस बहुत ज़्यादा जो हैं वो हीटअप हो रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और फिर इससे क्या हो रहा है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी टर्म है जो कि हमेशा से मौजूद था, ये कोई अब नई दरियाफ्त नहीं हुई है। लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा था? इट इज़ बेसिकली टू कीप द अर्थ टेम्परेचर मेंटेन, बट नाउ इट हैज़ बीन एनहेंस्ड। बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया, तो ये अर्थ के टेम्परेचर में इजाफे का बायस बन रहा है अब, और एक ऐसा इजाफा जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। इट इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।